Hello everyone, myself Vijendra Jain, Faculty Social Science, PCCP Division, Resonance Kota. Today I am present here with the chapter Nationalism in India for the one short video, and mostly in this chapter we will discuss about the rise of nationalism in our country India after the World War I. I can say that this chapter will be after 1914 till the 1945, or we can say the chapter will be till about the Quit India movement. When we talk about the rise of nationalism in India, first we need to discuss that what were the reason behind the rise of nationalism. So in this chapter, first we will define about the definition of the nationalism and what were the main reason for the sense of collective belonging in our country India after the returning of Mahatma Gandhi. What kind of nationalist movement they started in our country, what kind of satyagraha they started in our country India. So let's talk about the chapter, that is nationalism in India. First of all, to discuss about the chapter, we need to define the definition of nationalism. So what is the meaning of nationalism? When we talk about the nationalism, I can say that the meaning of nationalism is dedication towards the nation, झुकाव, लगाव, affection, love. यहाँ मैंने मेंशन किया है that nationalism is a sense of collective belonging among the people developed due to common identity and the shared history or descents. It is a long past of the devotions, or I can say that there will be the history of the past, or I can say that the sense of collective belonging means यहाँ सभी को लेके बात किया जाएगा, चाहे वो एलिगोरीज हो, फीमेल फिगर वाली, या नेशनल फ्लैग हो, या फोकलोर्स हो, फोक सॉन्ग्स हो, यहाँ उन सभी को ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करना जिससे कि लोगों को ऑर्गेनाइज किया जा सके, यूनाइट किया जा सके, किसके लिए? नेशनल डेवलपमेंट के लिए, या उनके अंदर नेशंस के प्रति टूवर्ड्स द नेशन फीलिंग्स को क्या कर सके, हम इन्फ्लुएंस कर सके या फीलिंग्स को ला सके. इन इंडिया द नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. जब इंडिया की बात आती है, एज वी नो दैट द इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो यहाँ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर निकालना. देन ईच क्लास एंड द ग्रुप फेल्ट दैट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्लास के लिए, चाहे हम पीजेंट को लेके बात करें या हम प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को लेके बात करें, सबके लिए कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेके जब हम बात करते हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट काइंड का था. मतलब किसानों के लिए टैक्स ज़्यादा थे, या उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, या एट्रोसिटीज ज़्यादा होती थी. जबकि हम रूलर्स को लेके बात करते हैं तो उनका एम्पायर लगातार स्नेच किया जा रहा था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल्स के द्वारा. The Congress under the Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement. जब महात्मा गांधी ने यहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को चलाया या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया, तो उनका मेन मोटिव था लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और उन्हें एंगेज करना किस फीलिंग के अंदर? इन द फीलिंग ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म. क्या किया, क्या हुआ, आइए बात करते हैं. World War I that create the sense of collective belonging, or they create the seeds of rise of nationalism in our country India. So what were the reason after the World War I that the peoples started to organize themselves, or we can say that the Indian people start to unite themselves for the nationalist movement. क्या हुआ, आइए बात करते हैं. World War I played an important role in shaping India's freedom struggle. How? First point, increased defense expenditure by the introduction of war loans. We know very well that the World War I was fought between 1914 to 1918. इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स का रिक्वायरमेंट था यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर. मोस्टली हमें मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था या इंग्लैंड का गुलाम था. यहाँ जब काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक वॉर चले, कहाँ? इंग्लैंड के अंदर, या इंग्लैंड इंगेज रहा. एज वी नो दैट there were the two main factions, the groups in the World War I. एक सेंट्रल पावर्स का ग्रुप था, दूसरा एलाइड पावर्स वाला ग्रुप था. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलाइड पावर्स के अंदर ब्रिटेन, रशिया को लेके हम बात करते हैं, अगर या फ्रांस को लेके हम बात करते हैं, तो ब्रिटेन के अंदर जब वॉर में इन्वॉल्व हुआ ब्रिटेन, तो जर्मनी स्टार्टिंग में जीत रहा था टिल द 1917. तो यहाँ काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर में देखने को मिला ब्रिटेन के अंदर, और वार लोन्स लगातार बढ़ता जा रहा था. ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया के अंदर पीजेंट या फार्मर्स जो थे या यहाँ के प्रिंसली रूलर्स जो थे, उनके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, जिससे कि यहाँ पर
डिफरेंट क्लास के पीपल्स इनसे नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। सेकंड, इंक्रीज इन टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, प्राइस डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918। जैसा कि यह लिखा हुआ है, मैंने बताया कि लगातार कंटिन्यू वॉर में एंगेज होने की वजह से, या 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार जो चला उसके अंदर एंगेज होने की वजह से जब वार एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा, कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। मोस्टली जो मैंने बात किया है ब्रिटेन को लेके बात किया है, ब्रिटेन को लेके हम बात करते हैं अगर, तो वी नो वेरी वेल दैट द इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आई कैन से द इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। दैट्स व्हाई यहाँ सारा का सारा वार लोन्स जो है उसको निकालने के लिए यहाँ इंडिया में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस को इंपोज कर दिया, कस्टम ड्यूटीज को इंपोज कर दिया, और यहाँ तक कि प्राइस जो है उनको डबल कर दिया गया। देन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, एज वी नो दैट वॉर चल रहा है, काफी सारी कैजुअलिटीज होती है, आर्मी में इनका रिक्वायरमेंट होता है, तो इंडिया से सोल्जर्स के रूप में इंडिया के यंग पर्सन्स को, या मैं कहूँ एडल्ट्स को बाहर भेज दिया गया, कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वॉर में एंगेज करने के लिए। तो यहाँ पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ हुए और जो पब्लिक थी इंडिया की वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। देन इन 1918 to 1919 and 1920 to 1921 crops failed in many part of India. Due to crop failure there was the food shortage, और फूड शॉर्टेज की वजह से लोगों को हम कह सकते हैं कि फेमाइन वाली कंडीशन आ गई थी। अब फेमाइन जब हुआ तो लोग अपना लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में जब नए टैक्सेस को इंपोज किया गया, देन हाउ कैन बी इट पॉसिबल टू पे द लोन। ये संभव कैसे था जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जब खुद के सर्वाइवल के लिए आपके पास फूड नहीं है, तो आप लोन कैसे पे कर पाएंगे। तो यहाँ भी किस तरह का, यहाँ हमने एक क्रिएशन देखा किस तरह का एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेकर के, मतलब कि विरोधी भावना पैदा हो गई इंडियन पीपुल्स के अंदर। देन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो एक तरह की बीमारी का नाम है, of 1921 something about 12 to 13 million peoples perished as a result of famines and the epidemic। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ 12 to 13 मिलियन पीपल्स लोग इसके अंदर मारे गए, कैजुअलिटीज हुई काफी ज्यादा। उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकाले या कोई इसका रिजोल्यूशन नहीं किया। सो आफ्टर डेट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई उपाय नहीं कर रही थी इंडियंस के लिए, या कोई प्रयास किया ही नहीं जा रहा था, तो इंडियंस ने क्या किया, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। देन द नेक्स्ट क्या होता है, देखिए अब जो बात आती है इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली, वो चैप्टर पूरा डिपेंड करता है महात्मा गांधी के ऊपर। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे अधिक अगर किसी पर्सनैलिटी का नाम आया है तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लेकर हम बात करें, 1915 के अंदर महात्मा गांधी अफ्रीका से कहाँ आएंगे, इंडिया के अंदर, और वो काफी सारे मूवमेंट्स चलाएंगे। स्टार्टिंग सत्याग्रह से होगी जो कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर भी चलाया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, जहां नटल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और यह हम बात करते हैं अगर यहाँ पर भी इंडिया में क्या किया इन्होंने, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया है। मोस्टली स्टार्टिंग में जो 3 सत्याग्रह चलाए गए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट द महात्मा गांधी। एज वी नो दैट महात्मा गांधी, जिनका नाम पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। इंडियंस थे। इनका स्पाउस जो मतलब इनकी वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। प्रोफेशंस को लेके हम बात करते हैं अगर, तो ये लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, अच्छे एक्टिविस्ट भी थे और राइटर भी अच्छे थे। ये काफी सारी बुक लिखी जहां हम बात करेंगे हिंद स्वराज को लेकर। इनका डेथ हुआ 30 जनवरी 1948। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी ने क्या किया इंडियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनकी यूनिटी के लिए, या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को इंडिया में रन करने के लिए। महात्मा गांधी एट साउथ अफ्रीका। देखिए काफी सारा टाइम महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में स्पेंड किया। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका को लेकर, वहां से वो जनवरी में लौटे और जब जनवरी में लौट के यहाँ पे इंडिया वापस आए तो उस डे को हमने एनआरआई डे के रूप में मनाया, भारतीय प्रवासी दिवस। In May 1893, he went to South Africa to work as a lawyer. There, he had first-hand experience of racial discrimination. वहाँ उन्हें रंग को लेकर के भेदभाव दिखाई दिया, काले गोरे वाला भेदभाव। On 22nd of May 1895, महात्मा गांधी established the Natal Indian Congress। जैसा मैंने आपको बताया, नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, किसके लिए, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लोगों को समझाने के लिए वहां पर इन्होंने इस तरह का ग्रुप बनाया। He was influenced by the idea of सत्याग्रह। सत्याग्रह को लेकर हम बात करेंगे, 2 मेन पॉइंट होंगे, सत्य प्लस आग्रह मींस ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस को लेकर बात चलेगी यहाँ पर, और आग्रह करना मतलब रिक्वेस्ट के बेसिस पर ये अपनी बात को मनवाएंगे। देन
that is the devotion of truth and in 1906 implemented non-violent protest. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाए जिनके दो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स थे, एक का नाम ट्रूथ होगा, दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंट वाला. Then he returned to India on 9th January 1915. वापस कब लौटे वो इंडिया में, 9th of January 1915 after spending 21 years of his life in South Africa. On 9th January ये वापस आए. इस दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI डे. कब मनाते हैं, 9th of January को. Then next, in 1915 जो हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी को लेकर, जहां नटल कांग्रेस को लेकर इन्होंने स्थापना की थी अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और यहां जो बात करने वाले हैं 1915 के अंदर महात्मा गांधी ने कंडीशन देखा इंडिया का, दैट वाज टू बैड, बहुत बुरी थी. इंडियन पीपल और फार्मर्स को लेकर हम बात करते हैं, अगर पीजेंट्स को लेकर हम बात करते हैं अगर, तो कंडीशंस एट्रोसिटीज की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार इनको सप्रेस किए जा रही थी, तो बहुत ही बुरी हो चुकी थी. ऐसे में महात्मा गांधी ने जब सबसे पहले स्टार्टिंग किया सत्याग्रह, वो स्टार्ट किया चंपारण के अंदर. चंपारण के बाद हम बात करते हैं खेड़ा के अंदर, खेड़ा के बाद हम बात करेंगे गुजरात के अंदर. क्या किया, आइए बात करते हैं. इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली एंड जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है 1885 के अंदर, तो महात्मा गांधी ने इसको ज्वाइन किया विद द गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज मेंटर. इन 1912 गोखले विजिटेड साउथ अफ्रीका एट गांधीज इन्विटेशन. गोखले भी इनसे मिलने गए थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी गांधी जी कॉल्स गोखले हिज मेंटर एंड गाइड, जहां बताया गया है कि गांधी जी के मेंटर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले. आइडिया ऑफ सत्याग्रह सिंपल वर्ड्स में लिखना है, और काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से मिल सकता है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह. राइट नोट ऑन सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया. क्वेश्चन क्या होने वाला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, और इसके बाद में आपको बताना है कि सत्याग्रह कौन कौन से महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किए, चलाए इंडिया के अंदर. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सत्याग्रह, I already told you that satyagraha word derived from two words, satya plus agraha means truth plus request. Mostly Mahatma Gandhi said that if your aim is true and it was against injustice, then you can achieve your goal through only the basis of truth and non-violence. महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप इसे सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आसानी से अपनी बात को मनवा सकते हैं. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. बताया कि अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर ये अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी भी तरह के फिजिकल पावर का यूज करने की जरूरत नहीं है. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियंस, कि जो नॉन वायलेंस वाली पद्धति है वो सभी इंडियंस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगी. आगे बात करते हैं गांधी जी चंपारण सत्याग्रह. जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज करेंगे. द फर्स्ट वाज चंपारण, सेकंड वाज खेड़ा एंड द थर्ड वाज अहमदाबाद सत्याग्रह. चंपारण बिहार में ऑर्गेनाइज होगा, खेड़ा को लेकर हम बात करेंगे गुजरात के अंदर चलेगा, और अहमदाबाद सत्याग्रह भी आपका गुजरात के अंदर ही चलने वाला है. देखिए गांधी जी इस चंपारण सत्याग्रह, पहला जो मूवमेंट लिया है हमने, सत्याग्रह लिया है, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ. Along with the team of lawyers, गांधी जी traveled across the district to get first hand account of this suffering. पहले वहां पता लगाया कि चल क्या रहा है चंपारण के अंदर. मोस्टली यहाँ इंडिगो प्लांटेशंस को लेकर हम बात करें, ओपियम प्लांटेशंस को लेकर हम बात करें, या अप्रेसिव कंडीशंस को लेकर हम बात करते हैं प्लांटेशंस वर्कर्स को लेकर, तो उनके लिए उनको प्रोटेस्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट चलाया था. मोस्टली कई बुक के अंदर इसका डेट ईयर आपको 1916 मिलता है, और एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो कई जगह 1917 भी आपको देखने को मिल सकता है. तो ईयर को लेकर आप कंफ्यूज ना हो कि 1916 लिखना है या 1917 लिखना है. न्यू बुक के अंदर ही आपको 1917, सेकंड जो मूवमेंट आएगा वो भी 1917, और थर्ड जो मूवमेंट है वो 1918 दे रखा है. तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. देन these statements was recorded under a formal system, set up basic schools to the fight illiteracy and generate awareness, organize veteran supporters and fresh volunteers. और यहाँ किस बात को लेके मूवमेंट चला वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. देखिए एप्लीकेशंस ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए गए. आपको याद रखना है
पहला चलाया गया 1917 के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ चंपारण के लिए आपको 1916 देखने को मिल सकता है, बट प्लीज बात को इग्नोर करनी है। ऐसा नहीं कि आपको 16 लिख दिया तो गलत होगा या 17 लिख दिया तो गलत होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप 17 लिखते हैं तो भी राइट माना जाएगा और 16 भी आपका राइट ही माना जाएगा। 1917 चंपारण मूवमेंट चला बिहार के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का इंडिया के अंदर। That was against oppressive plantation system, पीजेंट्स को लेके बात की जा रही है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एट्रोसिटीज थी कहां पर, इंडिगो और ओपियम की फार्मिंग को लेकर के या प्लांटेशंस को लेकर, तो इसको सप्रेस करने के लिए महात्मा गांधी ने सहयोग किया। कहां के किसानों को, बिहार के किसानों को। सक्सेसफुल रहा मूवमेंट। सेकंड आता है आपका 1917 के अंदर खेड़ा जो गुजरात में है। ड्यू टू क्रॉप फेलर द peasants of Kheda Gujarat was not able to pay the revenue and they want the relaxation in the revenue। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया जहां महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया। लिखा हुआ है कि क्रॉप फेलर एंड ए प्लेग एपिडेमिक स्प्रेड इनटू द खेड़ा गुजरात। गुजरात के खेड़ा में प्लेग एपिडेमिक फैल चुका था और क्रॉप फेल हुआ, और क्रॉप फेलर से फूड शॉर्टेज हुआ, और यहाँ पर प्रोडक्शन ना होने से लोग रेवेन्यू पे करने में कैपेबल नहीं थे। इसलिए उन्होंने मूवमेंट चलाया कि कहीं ना कहीं छूट दी जाए इस चीज के अंदर। थर्ड है आपका 1918 वाला जो अहमदाबाद में चलेगा, वही गुजरात के अंदर। यहां अगर बात की जाए तो ये कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर बात की जा रही थी जिनके लिए मूवमेंट चलाया गया। एंड व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम इन द कॉटन मिल वर्कर्स, दे पेड लो वेजेस, उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। सो दे वांट टू इंक्रीज द वेजेस एंड दे वांट टू फिक्स द टाइम आवर्स, उनके समय के जो टाइम आवर्स है उनको फिक्स किया जाए और उनका जो वेतन है, वेजेस है, उसको भी बढ़ाया जाए। दीज वर द डिमांड्स इनटू द अहमदाबाद सत्याग्रह, जहां यह भी क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा। इन 1919 अगर हम बात करते हैं अमृतसर पंजाब को लेकर, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर है बात। और इसी के बाद जो हम बात करेंगे मार्शल लॉ को लेकर के, या किस प्रकार से आगे हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर या इंसिडेंट को लेकर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देन द नेक्स्ट द रोलेट एक्ट। द रोलेट एक्ट जिसे हम बोलते हैं काला कानून वाज इम्पोज्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। था क्या, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इंपोज किया था इंडिया के अंदर। इसमें था क्या, देखिए इन 1919 द रोलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और काउंसिल का नाम है आपका इंपीरियल Legislative Council. This act gave the government enormous power for the suppression of political activities in our country India। या political activists जो थे उनको रोकने के लिए इस मूवमेंट को या इस एक्ट को बनाया गया। and allowed detention of political prisoners for 2 years without any trial। बिना किसी भी ट्रायल के, या मैं कह सकता हूं कि आर्गुमेंटेटिव राइट्स नहीं थे बिल्कुल भी, या जुरिस्डिक्शन राइट बिल्कुल भी नहीं थे ऐसे एक्टिविस्ट के पास में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के पास, जो कि रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग गिरफ्तार किया गया हो। और 2 साल के लिए, जेल कितने साल के लिए होगी, 2 साल के लिए। मोस्टली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चलने वाली एक्टिविटी को रोकने का था, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा ना बढ़े इसलिए। अपोजिशन क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी स्टार्टेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने इनकी बात को मानने से इनकार किया, इसलिए लिखा है सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर अपोजिंग द रोलेट एक्ट विद ए नेशन वाइड हड़ताल। 6 अप्रैल को हड़ताल की गई। 9 अप्रैल को रैली ऑर्गेनाइज होगी। शॉप्स वर क्लोज डाउन, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेल वर्कशॉप वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। और जब ये बात आती है 10 अप्रैल को लेकर, अमृतसर पंजाब के अंदर जब रैली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, on 10th of April 1919 in Amritsar widespread attacks on banks, post offices and railway stations took place। और इसके बदले में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को मारना पीटना स्टार्ट किया, एट्रोसिटीज की लाठीचार्ज हुआ जिसके अंदर कई लोग मारे गए, और लास्ट में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ सेम लाइक ए कर्फ्यू, जिसकी कमांड दी गई जनरल डायर को। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट ब्रूटली रिप्रेस द नेशनलिस्ट, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक इट कमांड। अब क्या होता है, देखिए अमृतसर के अंदर जो लोग थे आसपास वाले जहां मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया, उन्हें तो मार्शल लॉ के बारे में मालूम था, लेकिन इससे थोड़ा दूर अगर हम बात करते हैं, मतलब कि अमृतसर के बाहर आउटसाइड की हम बात करते हैं, तो लोगों को पता नहीं था
कि अमृतसर पंजाब के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया है और लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। ऑन द 13th of April 1919 की अगर हम बात करते हैं, जिस दिन बैसाखी फेयर या एनुअली बैसाखी जो फेस्टिवल होता है सिखों का, उसे मनाने के लिए लोग इकट्ठा होने वाले थे जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि लोकेटेड है आपका कहाँ, अमृतसर पंजाब के अंदर। तो वहां जब लोग इकट्ठा हुए और उन्हें जब इस बात का मालूम नहीं था कि यहाँ पर अमृतसर में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया है और मोस्टली जो पीपुल्स इकट्ठे हुए थे वो बैसाखी फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कुछ लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब इस बात का मालूम जनरल डायर को चला तो जनरल डायर ने सीधा क्या किया, आर्मी को लेकर कहां पहुंच गया, जलियांवाला बाग के चारों तरफ आर्मी को उसने लगा दिया और सारे के सारे एग्जिस्ट जो थे, गेट जो थे, उनको बंद करवाया और विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी वार्निंग उसने सीधा पब्लिक के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हजारों लोग मारे गए। आइए बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर 13th of April 1919 को लेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर 13th of April 1919, a number of people had assembled at Jallianwala Bagh in Amritsar for attending the annual Baisakhi fair. जनरल डायर, जिसको लेकर मैंने बात किया है, was the head of martial law या कमांड इसके हाथ में थी, surrounded the park and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. 369-89 आपको नंबर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जबकि हम बात करते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट के लेके मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के मोर देन 1000 ऑफ पर्सन वर किल्ड इन दिस मैसेकर, जो यहाँ बात की जा रही है। आफ्टरमैथ ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, crowds took the streets in many North Indian towns. Strikes, clashes with the police and attacks on government buildings were extensively witnessed. कई जगह हमले हुए, गली गली के अंदर लोगों ने आपस में बहस करना स्टार्ट कर दिया पुलिस से। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मानने को तैयार नहीं था, माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। द ब्रिटिश यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को निर्ममता के साथ में इस बदला लेना स्टार्ट किया, ये रिप्रेस करना स्टार्ट किया, दबाव बनाया उनके ऊपर। सीकिंग द ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपुल्स, लोगों को धमकाना डराना स्टार्ट कर दिया। पीपुल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, कई जगह लोगों को मारा पीटा गया, बम से उड़ा दिया गया। दिस वायलेंस फोर्स्ड गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट, और गांधी जी को इसके लिए मूवमेंट को रोकना पड़ा। नाउ अब क्या होता है, हम बात करने वाले हैं इसी के बाद में एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर, साथ में ही हम चलेंगे खिलाफत मूवमेंट को लेकर। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय 2 अली ब्रदर्स, एक मोहम्मद अली का नाम आता है, एक आता है आपके शौकत अली का नाम। देखिए यहां लिखा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी जिन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज इन 1909, उसमें एक्सप्लेन किया था दैट ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन अवर कंट्री इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। If Indian refuse to cooperate the Britishers, then their rule will be collapsed within a year. उनका मानना था ऐसा, और सही बात भी थी कि इंडियंस के सपोर्ट की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर पा रही है। अगर इंडियन सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो 1 साल के अंदर अंदर यहां से उन्हें जाना पड़ेगा। यही लिखा। क्या मूवमेंट था, ये बात करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। इस मूवमेंट की बात करने से पहले हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द प्रोटेस्ट ऑफ खलीफा। खलीफा वाज द रिलीजियस चीफ और द हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और अगर हम बात करें आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और हम करते हैं बात ऑस्ट्रिया को लेकर के, जिससे कि आपको पता होगा जर्मनी ऑस्ट्रिया को लेकर हम बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ये दोनों ने मिलकर सेंट्रल पावर के रूप में वॉर किया था, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस के साथ में। लास्ट में इनकी हार हुई थी सेंट्रल पावर्स की, और हार के साथ ऐसा रूमर फैल चुका था पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि खलीफा जो है उसकी पोस्ट को हमेशा के लिए हटाया जा रहा है और उसके ऊपर भी वर्सलीज की जैसी ट्रीटी को इंपोज किया जाएगा, जर्मनी के ऊपर की गई थी। इसके प्रोटेस्टिंग में जगह जगह मुस्लिम्स ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट चलाया गया बाय द मोहम्मद अली शौकत अली जिन्ना के द्वारा। और अगर हम बात करें इस मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने भी इंडियंस और मीन्स मेरा हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। मतलब वो चाहते थे कि यूनिटी बने हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर, और इसी के साथ वो एक मास स्ट्रगल या मास मूवमेंट भी चलाना चाह रहे थे। और तब स्टार्ट हुआ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर बात की जाए तो इसका प्रपोजल जो है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और क्वेश्चन जो है मैप वर्क भी यहाँ से पूछा गया है। व्हेन वाज महात्मा गांधी पुट द प्रपोजल ऑफ NCM? महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल कब रखा? सितंबर को लेकर हम बात करते हैं 1920 के अंदर।
तो कलकत्ता सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था। डेट वाज अडॉप्टेड बाय द नेशनल कांग्रेस, जिसको अडॉप्ट किया गया दिसंबर 1920 के अंदर इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। याद रखना है आपको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। क्या क्या इसके मेन उद्देश्य थे? वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच सोशल ग्रुप्स हैड देयर ओन एस्पिरेशंस बट ऑल फॉट टुगेदर फॉर द स्वराज। स्वराज मीन्स फुल्ली इंडिपेंडेंसी, खुद का राज। बट द टर्म मीन डिफरेंटली फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, लेकिन हर किसी के लिए सोच अलग अलग थी। पीजेंट का सोचना था कि उनको अपने लैंड वापस मिल जाए, बिजनेसमैन का सोचना था कि वो फ्री ट्रेड कर सकें। लाइक जो हमने बात किया है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर इनका सोच अलग था, पॉलिटिकली लोग अलग सोचते थे, या सोशली अगर हम बात करें मिडिल क्लास को लेकर उनका सोचना बिल्कुल डिफरेंट था। कॉजेस क्या थे? मैंने जैसा बताया खिलाफत इश्यू को लेकर आफ्टर द रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी फेल्ड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, so he took up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turk Empire, and there were rumors that a harsh treaty would be imposed on the Khalifa. खिलाफत की जगह खलीफा है, खलीफा. So a Khilafat committee was formed in March 1990 to defeat the Khilafat's temporal power. यहाँ अगर हम बात करें डिफेंड को लेकर के, डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी को बनाया गया इंडिया के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। सेकंड लिखा है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को लेकर हम बात करें, आपको पता है कि काफी सारे लोग मारे गए थे ब्रूटल रिप्रेशन की वजह से, एट्रोसिटीज काफी ज्यादा हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडियंस के ऊपर। द डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम द रोलेट एक्ट एंड द फेलर ऑफ द रोलेट एक्ट सत्याग्रह। देन द नेक्स्ट जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर हम बात करें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन इट, सो द इंडियंस आर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने मूवमेंट चलाने के लिए पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, महात्मा गांधी का सहयोग किया। मेथड्स क्या थे, क्या करना था उन्हें? Surrendered government titles. What were the main programs or the methods of non-cooperation movement? किस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, चलाया गया? पहला लिखा है surrendered government titles. गवर्नमेंट टाइटल्स को सरेंडर किया गया। Then the second is boycotted civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and the foreign goods. लोगों ने जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे या किसी और तरीके से इंगेज थे, उन्होंने यहाँ से रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया, इस्तीफा दिया, या स्कूल्स और कॉलेज में बच्चों ने जाना बंद कर दिया। एंड इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेशन का यूज करती है, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, तो हम भी क्या करेंगे, इनकी बात को बिल्कुल मानने से मना कर देंगे। किसकी? अंग्रेजों की। क्या होता है? डिसएग्रीमेंट्स। Few Congress members were not in support of the idea of boycotting the council elections. किस किस तरह से नाराजगी जताई लोगों ने? कुछ पार्टी जो थी वो मानने को तैयार नहीं थी, या कांग्रेस के कुछ मेंबर्स एनसीएम के साथ में सहयोग करने को तैयार नहीं थे, बाइकआउट करना नहीं चाह रहे थे। लिखा हुआ भी है बाइकआउटिंग द काउंसिल इलेक्शंस एज दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सिस्टम बाय बीइंग इन पावर। वो लोग चाह रहे थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके कहाँ पे आए, डेजिग्नेशन में आए, पद में आए, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क करें, और उसके बाद सिस्टम को चेंज करें ताकि हमारी बात को सुना जाए। सम पर्सन लाइक द CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, दे फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। जो बात चलती 1923 को लेकर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की गई बाय द चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और क्या कहा कि यहाँ पे भी काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर ध्यान दिया जाए। Some leaders feared that the movement to turn violent. कुछ नेताओं का मानना था कि मूवमेंट क्या हो जाएगा, थोड़े समय बाद में हिंसक बन जाएगा, जहां काफी सारे लोग मारे जाएंगे। क्या होता है और किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ता है? Some important events during non-cooperation movement. पहला जो हम बात करते हैं खिलाफत कमेटी को लेके, जो मार्च 1919 के अंदर बॉम्बे के अंदर फॉर्म की गई थी बाय द मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। Then the second is Mahatma Gandhi in the Calcutta session of the Congress convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Swaraj in September 1920. जो हमने बताया आपको कलकत्ता सेशन जो हुआ था वहां पर बात की गई है। Then non-cooperation programs adopted, यहाँ पर बात किया गया है non-cooperation program adopted by the Congress on December 1920 during the Nagpur session of Congress. क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है कि सितंबर 1920 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रपोजल को पुट किया गया फॉर द एनसीएम, और दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर सेशन में इसे अडॉप्ट किया गया। जनवरी में स्टार्ट हो ही चुका था मूवमेंट। देन
स्टेप्स टेकन, जैसे कि हमने बात किया प्रोग्राम्स को लेकर किस तरह स्टार्ट हुआ, अनफोल्ड कैसे हुआ, क्या क्या स्टेजेस थी इनकी या स्टेप्स क्या थी, तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन द कंट्री साइड्स और सेकंड हम बात करेंगे इन द टाउन्स। टाउन्स को लेकर हम बात करें तो जो भी प्रोग्राम्स आपके आने वाले हैं वही स्टेप्स होंगी, बट कंट्री साइड्स में हम मोस्टली बात करते हैं। तो यहाँ 2 तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ 2 एग्जाम्पल आपको NCERT में बुक में दिए हैं, एक आपका अवध के अंदर और सेकेंड आपका कहाँ दिया गया है, गुड़ेम हिल्स ऑफ आंध्रा के अंदर। गुड़ेम हिल्स के अंदर जो लीडरशिप कर रहे थे उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसको लेकर, अवध को लेकर, तो आइए दोनों की बात करते हैं, अवध की बात भी करेंगे और साथ में हम किसकी बात करेंगे, गुड़ेम हिल्स आंध्र प्रदेश की लेकर। पहले आपका है स्टेप्स टेकन। द स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। जैसा मैंने बताया कि बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। Lawyers gave up their legal practices and the council's elections were boycotted in the most provinces except Madras. मद्रास के अलावा सभी जगह बाइकआउट किया गया इलेक्शंस को लेकर के। Foreign goods were boycotted, liquor shop picketed and the foreign cloth burnt into huge bonfires. These were the main programs in the cities. Then what were the main effect of the NCM? The import of foreign cloth halved just from 102 crore to only 57 crore. That was good. Then merchant and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. Production of the Indian textile mills and the handloom went up. This was the main result of NCM. So obstruction faced, what were the main problems with the NCM और लास्ट में what were the reason for the fail of NCM, called off क्यों किया गया, फेलिंग क्यों हुआ, देखिए खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव व्हेन वी स्टार्ट टू बाइकआउट द फॉरेन क्लॉथ, जब हमने बाइकआउट किया, बट इंडियंस के पास कॉटन क्लॉथ के अलावा कोई दूसरा इसका सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव नहीं था और कॉटन क्लॉथ को परचेज कर पाना पुअर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ भी बात की गई है, अगर बात की जाए तो पुअर्स को लेकर के हम बात कर सकते हैं कि वो कॉटन के क्लॉथ को खरीदने में सक्षम नहीं थे। देन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम इन प्लेस ऑफ द बाइकआउटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूट। जिन ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का ब्रिटिश में पढ़ने वाले या ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले इंडियंस ने विरोध किया था या स्कूल्स और कॉलेज में एंट्री करने से मना कर दिया था या हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन किया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोबारा उन्हें इन्हीं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। देन नाउ रेबेलियन इन द कंट्री साइड्स, जैसा मैंने बताया एक अवध मूवमेंट को लेकर आप बात कर सकते हैं, सेकेंडली आप गुड़ेम हिल्स मूवमेंट को लेकर बात कर सकते हैं। पहला हम जो बात करने वाले अवध मूवमेंट को लेकर, द पीजेंट हैड टू डू बेगार। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट, बिना पैसे के किसानों को काम करना पड़ रहा था, एंड द वर्क विदाउट पे इन द फार्म्स ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. What were the demands of peasants in the Awadh movement during the NCM? अवध के अंदर क्या डिमांड कर रहे थे कि peasant का डिमांड था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, second abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. In Awadh, the house of talukadars and the merchants were attacked, bazaars were looted and grain hoards were taken over in many places. Local leaders told to the peasant that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. Night Dhobi Bandhs were organized by the panchayats for depriving landlords of the services of even barbers and washermen. They refused to work in the British Institute or the for the Britishers. The Awadh Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru and the Baba Ramchandra and few other in the October. Mostly when we talk about the Awadh movement, that was organized by the Baba Ramchandra. बाबा रामचंद्र के साथ यहाँ पर अवध किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका सेटअप भी हुआ और विद इन 1 मंथ और 3 मंथ की हम बात करते हैं तो अवध किसान सभा के काफ़ी सारे क्या बन गई, ब्रांचेस ही बनने लगी पूरे अवध के अंदर। रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स, जो हम गुड़ेम हिल्स को लेकर बात कर रहे थे, क्या हुआ, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि इनकी प्रिमिटिव राइट्स जो थे वो डिनाइड हो गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगलों में एंट्री करने से मना कर दिया था। Revolt by the tribals, the government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and the fruits. Means primitive rights has been denied by the British government. So, Alluri Sitaram Raju, that was the leader, led the guerrilla warfare
in the Gudem Hills of Andhra Pradesh. The rebels attacked police stations, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving the Swaraj demand of Purna Swaraj, or I can say demand for the rule of own, खुद का rule, freedom. स्वराज इन द प्लांटेशंस, प्लांटेशंस को लेकर बात किया जा रहा है, लोगों ने किस तरीके से विरोध किया जब हम प्लांटेशंस को लेकर बात करते हैं. देन अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 एक बात आया है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को लेकर के, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड मोस्टली दिस काइंड ऑफ परमिशन, जो इस तरह का परमिशन है वो रेयरली ही मिल पाता था कि लोग एक बार अगर प्लांटेशन में वर्कर्स के रूप में काम करने को आ चुके हैं तो वहां से वो जा नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से. जब इन लोगों को मालूम चला कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन्होंने भी क्या किया, प्लांटेशन वर्कर्स ने भी यहाँ विरोध करना स्टार्ट कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम. कहाँ की तरफ निकल गए, अपने घरों की तरफ. क्या होता है लेकिन, दे बिलीव्ड दैट द गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस. उनका मानना था कि गांधी युग आने वाला है और सभी को अपने गांव के अंदर जमीनें मिलने वाली, इसलिए हमको यहाँ से निकल लेना चाहिए. ऑन फेब 1922, जो मोस्टली हम बात करते हैं 5 फेब को लेकर के, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, और उसके बाद समथिंग अबाउट 12 फेब ऑफ 1922 को महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को हमेशा के लिए क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, विड्रॉ करना पड़ा. क्या रीजन था? ऑन 5 फेब 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. क्या हुआ था? Something about 22 people, or I can say the policemen, were killed when a procession became a agitated procession. जब जुलूस निकाला जा रहा था तो वो कैसा बन गया, एजिटेट, भड़कीला. एंड इन चौरी चौरा गोरखपुर यूपी के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स होता है उसको ऊपर आग लगा दी गई, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन, जिसके अंदर 21 सिपाही प्लस 1 हेड कांस्टेबल मारा गया. पढ़ते हैं, कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट फेस इन मेनी प्लेसेस. कई जगह ये वायलेंट रूप ले चुका था और जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा. सक यहाँ लिखा हुआ है ऑन 5 फेब 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट आपको याद रखना है जो मेन कॉज है, और 12 फेब 1922 को हमेशा के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया. साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को लेकर बात की जाए, टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया था, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इस 7 मेंबर्स की कमेटी थी जिसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए बनाया गया था, इंडिया के अंदर चेंजेस लाने के लिए. इट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश अंडर प्रोसीजर ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया. सर जॉन साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, sought to look into the demand for the nationalist and suggest changes in the constitutional structure of India. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या सुधार किए जाए, इस बात के लिए आए थे. When Sir John Simon came into India in 1928, Congress and the Muslim League along with the other parties received the commission with black flags and slogans such as Go back Simon, Go back Simon. काले झंडे लहराए गए और नारे लगाए गए, क्या, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ. इन अक्टूबर 1929 जब ऐसा ही एक विरोध चल रहा था, द कमीशन रिकमेंडेड ए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन कमिंग फ्यूचर एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कसिंग ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस को लेकर बात की जा रही है. किसने क्या किया, आइए बात करते हैं. देखिए इफेक्ट ऑफ साइमन कमीशन, प्रभाव क्या पड़ा, क्या रिजल्ट निकला. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore session of Congress formalized the demand of Purna Swaraj. याद रखना है आपको, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं 1929 के अंदर, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, फुल्ली इंडिपेंडेंसी को लेकर हम बात कर रहे हैं. ऑन 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे. लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे. In 1930, Dr. Bhimrao Ambedkar established the Depressed Class Association for the Dalit Group. क्या होता है आगे देखिए. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हम बात करने वाले हैं सीडीएम को लेकर, क्वेश्चन आता है कि सीडीएम क्यों चलाया गया या सीडीएम डिफरेंट कैसे था एनसीएम से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से. व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में केवल कॉपरेट नहीं करने से मना किया था,
बल्कि सीडीएम की हम बात करते हैं अगर, तो सीडीएम के अंदर कोऑपरेट ना करने के साथ साथ इनके रूल को या लॉस को ब्रोक करने के लिए बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कैंपेन चलाया गया। मोस्टली महात्मा गांधी ने क्या किया, सबसे पहले सोल्ट लॉ को ब्रोक किया, और यहाँ इस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो सोल्ट लॉ के ब्रोक होने के साथ ही करते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक दांडी यात्रा निकाली फ्रॉम द साबरमती आश्रम गुजरात, और ये यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को एंड हुई। कहाँ जाकर, दांडी कोस्टल एरिया पे जाकर, जहां महात्मा गांधी ने बॉइलिंग किया सी वाटर को, और सी वाटर को बॉइल करने के बाद उसे सॉल्ट में चेंज किया और सॉल्ट को यूज में लेना स्टार्ट किया, और उसी दिन से क्या हुआ, सीडीएम मूवमेंट का स्टार्टिंग माना जाता है। आइए बात करते हैं इस 240 माइल्स का जो दांडी मार्च हुआ उसके अंदर कितने कैंपेनियंस थे और किस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी चूज salt as the medium of protesting against the British rule, as salt was something consumed by the rich and the poor alike. It was one of the most essential items of good. हर कोई यूज में लेता है सॉल्ट को, जिसके ऊपर भी एक बहुत मिनिमम चीज है सॉल्ट, जिसके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में टैक्स लिया करता था, तो इसका विरोध किया गया हर जगह पर। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट ए लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन stating 11 demands ranging from industrialist to peasant। यहाँ रेंजिंग जो थी इसका, ये इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट तक सभी के बारे में यहाँ पर बात किया गया था, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड की बात भी यहाँ चली थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द डिमांड्स वाज द एबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी थी, सोल्ट टैक्स को हटाने की। द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बाय 11 मार्च और एल्स ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और जब 11 मार्च तक इसका जो अल्टीमेटम दिया गया था गांधी जी के द्वारा इरविन को, बात का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसको इग्नोर किया गया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सोल्ट मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च को विद देयर 78 कंपेनियंस, और ये समथिंग अबाउट 240 माइल्स का यात्रा थी जो 24 डेज के अंदर एंड हुई। 10 माइल्स पर डे इन्होंने रन किया। और अगर हम बात करें, साबरमती आश्रम गुजरात से स्टार्ट हुई थी और दांडी कोस्टल एरिया गुजरात पे ही इसका एंड हुआ, और स्टार्टिंग हुई 12 मार्च 1930 को, एंडिंग हुआ 6 अप्रैल 1930 को। देखिए, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स started from Mahatma Gandhi's ashram in Sabarmati to the Gandhi Gujarati coastal town of Dandi, spanning a distance something about 240 miles. On 6th April 1930, Mahatma Gandhi reached Dandi with thousands of followers and ceremonially violated the law by manufactured salt from sea water by boiling it. अब जब इसको कर दिया गया है, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा? ये मूवमेंट भी बिजनेस क्लास के लिए अलग था, पीजेंट्स के लिए अलग था, और जो गांव में रहने वाले कंट्री साइड्स के लोग हैं उनके लिए अलग था। किस तरीके से, आइए। स्प्रेड, soon the movement spread to the entire nation. Colonial laws were violated. Salt was manufactured in numerous places and in front of government salt factories. कई जगह लोगों ने सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया, बंद किया गया। फॉरेन क्लोथ्स को बंद किया गया, मतलब जलाया गया। Peasant refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस, लोगों ने, किसानों को ने टैक्स देने से मना कर दिया। Village official resigned in many places. People violated forest laws by going into reserved forest for the collecting wood and the graze their cattle or collecting the food or fruits. Government's response, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? गवर्नमेंट ने फिर से ब्रूटल रिप्रेशन को फॉलो किया, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर लोगों को मारा पीटा गया। In April 1930, Khan Abdul Ghaffar Khan was arrested. In May 1930, Gandhiji was also arrested. Peacefully satyagraha were attacked. Women and children were beaten by the British government. About 1 lakh people were arrested, और something about 1 लाख लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। Then गांधी इरविन पैक्ट को लेकर हम बात करते हैं। 5 मार्च 1931 वाली बात यहाँ पे आती है, और इसके साथ ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाने को रेडी होते हैं, और किस शर्त पर कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा। ऑन 5 मार्च 1931, गांधी जी कॉल्ड द CDM movement entering into a pact with the Viceroy Lord Irwin, that is known as the Gandhi-Irwin Pact. He consented to participate in the round table conference and the government agreed to release the political prisoners. In December 1931, went to London for the second round table conference. The conference held was unprofitable
as nothing fruitful came out of it for India. अगर हम बात करें, महात्मा गांधी की एक भी डिमांड को माना नहीं गया। वापस से जब महात्मा गांधी इंडिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान को अभी तक भी गिरफ्तार किया हुआ है और यहाँ तक कि आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको इलीगल बता दिया गया है। तो महात्मा गांधी ने फिर से रिलॉन्च किया किसको? सीडीएम मूवमेंट को। When Gandhiji returned from the second round table conference, he discovered that Khan Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were in the jail and the Congress had been declared illegal and a series of procedures had been enforced to prevent the meetings, demonstrations and the boycotts. और यहाँ रैलीज ऑर्गेनाइज करने के लिए मना किया गया था इंडिया के अंदर और काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी गई जिसकी वजह से इंडियंस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। विद द ग्रेट अप्रेंशन, महात्मा गांधी अप्रहेंशन को लेकर बात करें, भय को लेकर के, महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932 बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम और इसको फिर से बंद करना पड़ा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। पार्टिसिपेशन बाय पीपल, रिच कम्युनिटी को लेकर हम बात करते हैं। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज सच इज द पाटीदार ऑफ द गुजरात एंड द जाट ऑफ यूपी took part in the movement as they produced commercial crop. They were hit hard by the trade depression and falling prices that caused a decrease in the cash income of these rich peasant communities. So जब महात्मा गांधी ने सीडीएम को स्टार्ट किया तो इन्होंने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। पुअर पीजेंट्री को लेकर बात की जा रही है। पुअर पीजेंट्री वर मेनली स्मॉल टेनेंट्स that had rented land from the landlords. They found difficulties in paying their revenue or the taxes. So when they are not able to pay the taxes, and the Mahatma Gandhi starts CDM movement, they also participate in the CDM movement. बिजनेस क्लास को लेकर हम बात करते हैं। देखिए 1920 को लेकर हम बात करें, 1927 को लेकर हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1927 के अंदर, जिसका नाम है FICCI. Same like that, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress IICC जो 1920 में फॉर्म हुई और बिजनेस क्लास ने ही FICCI को फॉर्म किया 1927 के अंदर, ठीक है। और यहाँ सीडीएम मूवमेंट के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सेकेंड टाइम जब स्टार्ट हुआ तब ये लोग इतना आगे बढ़कर नहीं आए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, बट ओनली सम वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम मूवमेंट, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। वुमेन्स को लेकर हम बात करें, वुमेन्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहा लेकिन महात्मा गांधी ने इनसे मना कर दिया। They participated in the protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops, because of which many went to jail. There was a large scale participation of women in the civil disobedience movement, लेकिन गांधी जी इनसे मना कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए भी। ये चैप्टर था जो मूवमेंट्स को लेकर चला। अब आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आगे तक ऑर्गेनाइज किया गया, मोटिवेट किया गया, क्या क्या सोर्सेज थे। देखिए कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द मूवमेंट, सीडीएम मूवमेंट जो था वाज कॉल्ड ऑफ विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द रिच पीजेंट कम्युनिटीज। यहाँ रिच कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। सेकंड, व्हेन द मूवमेंट वाज रिलॉन्च्ड, कई लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लेने से मना कर दिया था, नॉट टू ज्वाइन द सीडीएम मूवमेंट, दैट्स व्हाई ये फेल हुआ। थर्ड, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन्स ड्यू टू द फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। तो नो रेंट वाले कैंपेन्स थे, उनके अंदर सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं इसका विरोध ना कर दे कौन लोग, अमीर पीजेंट। द स्प्रेड ऑफ militant activities, worries of prolonged business disruptions, growing influence of the socialism amongst the young Congress members and the failure of the round table conference led to the withdrawal of support to the movement by the business classes. लगातार फैलिंग ही अब मैं बात करूं, मूवमेंट फेल ही होता जा रहा था, तो इसकी वजह से बिजनेस क्लास ने भी इसके अंदर बढ़ने से मना कर दिया या आगे जाकर इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सीडीएम एक्सेप्ट इन नागपुर, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। दलित क्लास को लेकर हम बात करते हैं अगर, तो दलित क्लास जो होते हैं वो जो आईएनसी है उससे नाराज थे, क्योंकि उन्हें कहीं लगता था कि आईएनसी केवल सनातनीज का या हाई क्लास के हिंदुओं का ही सपोर्ट करती है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कम्युनिटीज ऑल्सो स्पार्सली पार्टिसिपेटेड, बहुत कम इसके अंदर हिस्सा लिया मुस्लिम कम्युनिटी ने, क्योंकि वो अपने आप को अलग मानने लगे थे आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Then the last
अपसर्ज ऑफ द नेशनलिज्म, जहां हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया, कौन कौन सी फोकलोर्स फोक सॉन्ग्स को लेकर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि नटेशा शास्त्री ने यूज़ किया द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, जिसके काफ़ी सारी उन्होंने वॉल्यूम्स लिखे। हम बात करें अगर फीमेल एलिगोरी को लेकर के, तो भारत माता की तस्वीर को बनाया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम गीत को लिखा गया, या अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर के, तो उन्होंने क्या किया, जनगण मन गीत को लिखा। और हम बात करें अगर, तो कई ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इंडिया के पीपल्स को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। स्वदेशी फ्लैग बनाया गया, यहाँ हमारा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग बनाया गया, जिससे कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, यूनाइट किया जा सके। तो अपसर्ज ऑफ द नेशनलिज्म, ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड द नेशनलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय द हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स। और इनके अंदर पहला नाम आया है अवनींद्रनाथ टैगोर इमेज ऑफ भारत माता एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सॉन्ग्स वंदे मातरम यूनाइटेड मेनी पीपल एंड कम्युनिटीज। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ए ट्राई कलर फ्लैग, जिसके अंदर पहली बार स्टार्टिंग में रेड, ग्रीन और येलो कलर था, फ्लैग वाज डिजाइंड। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर 3 कलर कौन कौन से, क्वेश्चन कई बार आया है। इट हैड 8 लोटसेस representing the 8 provinces of British government in our country India and a crescent moon representing Hindu and Muslim unity in our country India. In 1921 गांधी जी ने अपना फ्लैग डिजाइन किया। स्वराज फ्लैग को लेकर हम बात कर लेते हैं, जिसके ट्राई कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो। वापस से देखिए आप, रेड, ग्रीन एंड येलो विद द स्पिनिंग व्हील। अब बीच में क्या आ गया, जो लोटस था उसको हटाया गया और साथ में क्या आ गया, स्पिनिंग व्हील आया एट द सेंटर। दिस फ्लैग रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प and became a symbol of defense. The glorious developments in the ancient times when art and architecture also developed, science and mathematics, religion and cultural, law and philosophy, and craft and the trade flourished, were discovered with the help of history. The instilled pride and the united the Indians. These were the sense of collective belongings, man's reason. और हम बात करते हैं अगर अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म को लेकर, तो इंडिया के अंदर लोगों ने इस तरीके से, जो बड़े बड़े लोग थे या फिलोसोफर्स थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, उन्होंने इंडिया की पब्लिक को इंस्पायर किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बचता है अगर, तो वो क्वेश्चन है आपका मैप को लेकर। मैप में क्या क्या पार्ट है आपका, एक तो आपको याद करना है सारे के सारे सेशन ऑफ कांग्रेस, जैसे कि हमने 3 सेशन यहाँ देखे। एक सेशन था आपका लाहौर कांग्रेस सेशन, जो 1929 के अंदर हुआ पूर्ण स्वराज की डिमांड को लेकर। एक सेशन था आपका एनसीएम वाला, जहां हमने बात की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर। कलकत्ता सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ, जहां प्रपोजल रखा गया, जो आपके कलकत्ता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। एक आपका था नागपुर सेशन, जो दिसंबर 1920 में हुआ। दिसंबर 1920 वाला जो नागपुर सेशन हुआ वो आपका महाराष्ट्र में आता है। देन हम बात करते हैं चंपारण को लेकर, वो बिहार में है। हम बात कर सकते हैं खेड़ा को लेकर, जो आपका गुजरात में है। अहमदाबाद आपका गुजरात में है। देन अमृतसर आपका पंजाब के अंदर है। और अगर बात की जाए इसी तरीके से दांडी आपका गुजरात में है, और साथ में साबरमती आपका गुजरात में है। सो देयर वर द सम क्वेश्चन फ्रॉम द मैप पार्ट आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। तो वो अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, देन आई थिंक दैट यहाँ पर आपके मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ क्वेश्चन किस तरह का बनने वाला है, सारे के सारे पॉइंट्स को हमने विद आंसर्स आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ये चीजें जो हमने अभी बताई आपको वन शॉट वीडियो के अंदर, उन्हें सेम मेजिटीज भी लर्न कर लेते हैं, देन आई थिंक यहाँ से 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो इजीली आप कर सकते हैं। सो होप दैट योर पेपर विल बी गुड। और गुड क्या, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय एंड टेक केयर।